Studies Center of Dr. B.M.N. College of Home Science, I, Ms. Fatima Panaswara, take this opportunity to welcome you all to Sri Mohanlal Pathak Endowment Lecture Series on Values for Coexistence. Values are formed based on the shared beliefs, perspectives, and lifestyles we create, based on our stable relationships. Humans are social creatures, and hence, values are crucial for our advancement and development. With this brief introduction on values and how they help us coexist, we extend our warmest welcome to our invited speaker for the day, Dr. Ashwin Zala, management members of SMES, principals of constituent colleges under SMES, members of Lions Club of Science and other invited guests, faculty and students. May I now call on stage the students of Dr. B.M.N. College of Home Science to sing the university song. Requesting everyone to kindly rise to the university song. Mahendra Nanavati College of Home Science has been a recipient of the RUSA grant for enhancing quality in select autonomous colleges, as well as the UGC Strike grant for promoting research excellence. Our UGC recognized Guardian Studies Center was established in 2013. The primary objective of the center is to create an understanding and appreciation of Gandhian philosophy among the youth of today. We believe that Gandhiji's values are still relevant in every walk of life. Through the activities of the center, we aim to create an environment for students that will be conducive for their overall growth and development. To ensure qualitative facilities in order to upgrade academic excellence and to make students realize their potential and develop their skills and knowledge according to their individual aptitudes. Let us take a look at the key activities conducted by the Guardian Studies Center in 2022-23 and 2023 June to date.
scientists from the PPT, the Gandhian Studies Center aims to preserve and promote Gandhian values through diverse activities for students, staff, and the society at large. I would request the dignitaries to kindly step forward and occupy the seats on the dais. On behalf of Sevamandal Education Society, I extend a very warm welcome to Dr. Ashwin, who has come from Jalgaon for this special occasion to deliver the 6th endowment lecture under the Sri Mohanlal Pathak lecture series. Sevamandal Education Society was started in 1957, which has 7 students. And under the guidance of our management, today we have more than 6,000 students on campus and 7 institutions. If the society has grown, it is because we are led through our management to inculcate and practice the values that Gandhiji held very dearly to himself and which he spread not only through India but through the world. The values of compassion, of honesty, of humility, of transparency, of service before self, and very importantly, what we have heard so many times, that we need to be the change that we want to see in the world. And therefore, I think that it is very apt that we have a leading practitioner of Gandhiism here this morning with us, Dr. Ashwin, who himself practices Gandhian values through the kind of life that he lives, and through the kind of messages that he takes not only through India but internationally also. Sir has delivered many talks internationally. During COVID, Dr. Ashwin conducted some sessions for us online, and sir, the response from students was so good, although it was an online session, that even at that point of time, the Gandhian Studies Center decided that when we have a chance, we will call sir here to the institution so he can talk to you face to face. And once again, therefore, on behalf of Sevamandal, Dr. BMN College, the Gandhian Studies Center, we extend a very, very warm welcome to Dr. Ashwin. Thank you. Thank you, ma'am, for the welcome address. I now invite the management members to felicitate our guest of honor. To our chief guest. I now invite Ms. Jia Ambekar of SYBSC to introduce our esteemed speaker, Dr. Ashwin Zala, for today's lecture. It's my honor to introduce Dr. Ashwin Zala. Sir is an associate professor at Gandhi Research Foundation. He is also the editor of Gandhi Research Foundation's monthly bilingual language, Khoj Gandhi Ji. Prior joining to Gandhi Research Foundation, he was the principal of MSW College affiliated with Bhavnagar University and a core member of the Curriculum Design Committee at Bhavnagar University. His master dissertation on people's preparedness against disaster was conferred with the best research work in disaster management by Unnati Foundation and the Government of Gujarat. Dr. Jhala has done his doctoral dissertation on Gandhi's research and management at Gujarat Vidyapith, Ahmedabad.
He has been regularly invited by universities and colleges to hold keynote lectures on Gandhi and Ahimsa, the scope of social work, Gandhian economics, and Gandhi as a leader and a management guru. He has delivered more than 90 special lectures and 30 workshops on conflict transformation in different parts of India, USA, and Mexico. Sir, we are pleased to have you here with us today. We are eagerly looking forward for your special lecture on this special occasion. Thank you. Thank you for your introduction. I now invite Dr. Ashwin Zala to please release the workbook and facilitator's manual titled Life Skills Based on Gandhian Values. This workbook is a result of lectures conducted along with the second year students in the past 2 years about values that the Mahatma imbibed during his life and how they can be taught to the new generation via a blend of life skills. We would like to thank Dr. Bharat Pathak for instituting this lecture series in the memory of his late father, Sri Mohanlal Pathak. As a token of our love and appreciation, we have prepared a monograph of the lectures conducted in the past years by eminent speakers, and we would like to present it to Honorary Secretary, Dr. Bharat Pathak. This is being presented by Manoj Ma'am. May I now invite Dr. Ashwin Zala for the endowment lecture on values for coexistence. नमस्ते। सेवा मंडल एजुकेशन सोसाइटी संचालित डॉक्टर BMN कॉलेज द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महानुभाव आदरणीय प्रवीण भाई, आदरणीय भरत भाई, डॉक्टर पांडुरंग तथा गेस्ट फैकल्टीज एंड डियर स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, आज का जो टाइटल है वैल्यूज फॉर कोएग्जिस्टेंस, ये दो दृष्टिकोण, दो पर्सपेक्टिव को रखते हैं। एक है वैल्यूज
और सेकंड है को एग्जिस्टेंस। ये दोनों को आप अलग नहीं कर सकते, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रल पार्ट है। अगर आप वैल्यूज को अलग करेंगे तो अस्तित्व पर खतरा आएगा। अगर आप अस्तित्व को टिकाना चाहते हैं तो वैल्यूज को हमें कहीं ना कहीं इंकलकेट करना होगा, इम्बाइब करना होगा, हमारे जीवन के साथ उनको देखना होगा, प्रैक्टिस में लाना होगा। और इसीलिए ये जो टाइटल है वैल्यूज फॉर कोएग्जिस्टेंस, ये अप्रोप्रिएट टाइटल है आज की लाइफस्टाइल के संदर्भ में। मित्रों, आज के इस लेक्चर में मैं दो बातों के ऊपर फोकस करना चाहूंगा। जब हम कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं उनमें प्रायोरिटी है एग्जिस्टेंस, खुद का अस्तित्व, और वो अस्तित्व के साथ सह अस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस। ये एक कोएग्जिस्टेंस को हम लोग देखेंगे किस नजरिए से देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। जब हम अपने इस शरीर के साथ देखते हैं, अपने लाइफस्टाइल के साथ देखते हैं, तब उनको मेजर करने के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। वो इंडिकेटर्स के आधार पर हम देखने की कोशिश करेंगे। और सेकंड जो है कि हमारा अस्तित्व क्या केवल खुद के साथ ही है या अन्य जीव सृष्टि के साथ। ये दो महत्वपूर्ण घटकों को हम लोग अलग अलग माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे ये कहना है कि आज हम एक मॉडर्न ह्यूमन के रूप में जाने जाते हैं या हम उस स्टेज पर आए हैं जब हमारी ये जर्नी आरंभ हुई थी होमो सेपियन के रूप में। हम सब लोग भली बात ये नाम से परिचित है, राइट? होमो सेपियन हम नाम सुना है। हालांकि ये होमो सेपियन जो हमारी ही एक आरंभ का एक स्वरूप था हमारा अपना, ये स्वरूप जो शब्द बना होमो और सेपियन, ये लैटिन शब्द से बना है। होमो मीन्स ह्यूमन और सेपियन मीन्स वाइज। आज जो हमारा एक स्वरूप है, एक उभरते दिमाग के साथ हम एक ब्रेन को लेकर अपने आप को डेवलप किया है बेहतरीन स्थिति में। आज ये स्थिति तक पहुंचने के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई घटक है तो वो है वैल्यूज। आज से करीब लाखों साल पहले जब हमारा ये स्वरूप होमो सेपियन जो हम कहते हैं वो गुफा में रहता था, एक तरह से अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए हथियार बनाने की प्रक्रिया में आरंभ हुआ। हड्डियों से हथियार बनाता था, पत्थर से हथियार बनाता था और अपने अस्तित्व को टिकाता। किंतु वैल्यूज के संदर्भ में आज हम इतने मुकाम के बाद जहां पर खड़े हैं, स्वाभाविक रूप में उस वक्त उतने वैल्यूज को हम प्रैक्टिस में नहीं लाए और इसीलिए संघर्ष के साथ जीवन जी रहे थे, अस्तित्व की लड़ाई थी। हालांकि होमो सेपियन अकेले एक स्पीशीज नहीं थी, होमो इरेक्टस थे, होमो डियोस थे, वो सब खत्म हो गए। किंतु आज मॉडर्न ह्यूमन के रूप में हमारी ही वो आरंभ वाली प्रजाति टिकी थी। ये इसीलिए टिकी थी कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वैल्यूज को प्रैक्टिस में लाए और आज हम एक बेहतरीन स्वरूप पर आए हैं जहां पर हम लंबी यात्रा कर सकते हैं, जहां पर हम सोच सकते हैं, नया डेवलप कर सकते हैं, एक अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। ये सरल बनाने के लिए आज जिन माध्यमों का हम चयन करते हैं उन हर एक माध्यम के लिए हमने मूल्य को प्रैक्टिस में लाए। हम फ्रेटर्निटी की बात कर सकते हैं, ब्रदरहुड की बात कर सकते हैं, कंपैशन की बात कर सकते हैं, ऑनेस्टी, ये सभी वैल्यूज है जो आज हमने प्रैक्टिस में लाए हैं, इसीलिए हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। अगर जिस दिन ये वैल्यूज खत्म हो जाएंगे हमारा एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा, हम भी इस पृथ्वी पर थे ऐसे कहे जाएंगे। और इसीलिए हमारा ये जो जीवन है उन जीवन को हमें सोसाइटी के साथ, दूसरे के अस्तित्व के साथ देखने की आवश्यकता है। हमारा ये जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी, ये केवल सोसाइटी के आधार पर टिका हुआ है, केवल और केवल। उनमें आपकी और हमारी खुद की इंडिविजुअल जो एफर्ट है वो इतना नहीं है, ये सोसाइटी के द्वारा टिका हुआ है। एक बहुत बड़े ग्रेट फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट रहे हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने बहुत गहन अध्ययन किया है
वो डार्विनिज्म में मानते थे। और उत्क्रांति के बाद उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट ये है कि सोसाइटी डज नॉट स्टे एट द सरफेस ऑफ आवर स्किन, इट गोज डीप इनटू आवर बीइंग। हम लोग आज सोसाइटी की बदौलत जो भी धारण करते हैं वो सोसाइटी के पास से आता है। हमारा खुराक, हमारे अपने वस्त्र, हमारी अपनी फैसिलिटीज जो भी है वो सोसाइटी के पास आते हैं। पर हर्बर्ट स्पेंसर ये कहते हैं कि केवल सोसाइटी हमारे शरीर के ऊपर तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे अंदर भी समाहित है। और इसीलिए ये किस तरह से समाहित है उनका एक एनालिसिस हम लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं हमारे कैंपस में, और उस एक्सरसाइज के जरिए ये ह्यूमन बॉडी और सोसाइटी का जो रिलेशन है वो हम लोग एक देखने का नजरिया डेवलप कर पाए। और वो ये है, आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि हमारे ये जो शरीर है उनमें दो तरह के ऑर्गन्स रहते हैं, एक इंटरनल ऑर्गन्स, राइट। इंटरनल ऑर्गन्स में क्या क्या आ सकता है या क्या क्या आता है, कोई कह सकता है प्लीज? हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनीज, बोन्स, वेन्स, ब्लड सर्कुलेशन, ये सभी इंटरनल ऑर्गन्स है, राइट। हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन जो शरीर के ऊपर आंख है, कान है, नाक है, चमड़ी है, ये सभी एक्सटर्नल ऑर्गन। किंतु तीसरा एक प्रकार है ऑर्गन्स का, और वो है एक्सटीरियर ऑर्गन। ये एक्सटीरियर ऑर्गन जिसकी बदौलत हमारे इंटरनल ऑर्गन्स टिके हुए हैं, ये एक्सटीरियर ऑर्गन्स को हम लोग सोशल ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। अगर मुझे उदाहरण देने हैं तो हमारे ये ब्रेन क्या कार्य करता है? इंटेलेक्चुअल टास्क को निभाता है, राइट। जो भी हम लोग करते हैं वो एक दिमाग की अपनी एक उच्चतम कक्षा पर जाकर हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन्स आर नॉट बोर्न, आर बिल्ट। ये एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इसे बनाते हैं, तैयार करते हैं। और इसलिए बच्चा जब छोटा होता है ना, उसको भाषा का ज्ञान है, उनको अपना चलने का ज्ञान है, भोजन लेने का ज्ञान है, ये सभी ट्रेनिंग के जरिए हम लोग डेवलप करते हैं। और इसीलिए अगर हमारा ये ब्रेन है जो इंटेलेक्चुअल कार्य करता है, तो उसी तरह हमारे एक्सटीरियर सोशल ब्रेन्स भी हैं, और जिसे हम प्रोफेसर कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, यूनिवर्सिटी कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं, लेबोरेटरी कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, ये और कुछ नहीं है मित्रों, हमारे एक्सटीरियर ब्रेन्स है। उसकी अगर वे ब्रेन्स नहीं है तो क्या ये ब्रेन काम करेगा? बिल्कुल करेगा, किंतु उनकी उपस्थिति में ये बेहतरीन काम करेगा। और इसीलिए अगर हम उन्हें इग्नोर करते हैं तो शायद हमारे अस्तित्व को भी हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पर सह अस्तित्व की बात है। हम लोग उसी तरह एक एक ऑर्गन को सोसाइटी के साथ जोड़कर देख सकते हैं। हमारी किडनीज है, किडनीज शरीर में एक तरह से प्यूरिफिकेशन का कार्य करती है, राइट। जो भी टॉक्सिन है उसे प्यूरिफाई करके शरीर से बाहर निकालती है। ये जो किडनी कार्य करती है बॉडी में, वही कार्य हमारी सोशल किडनीज भी करते हैं, जिसे हम कहते हैं हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन। अगर वे नहीं है तो शायद हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये मुंबई शहर में जितने भी सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, वे अगर स्ट्राइक पर चले गए और कहते हैं कि हम लोग 15 दिन सफाई नहीं करेंगे, क्या स्थिति होगी हमारे शहर की? मुंबई का पॉपुलेशन कितना है, कोई कह सकता है? कितना है मुंबई का पॉपुलेशन? आप कल्पना करिए कि अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन 250 ग्राम से लेके 400 ग्राम कचरा फेंकते हैं, अगर इसे मैनेज नहीं किया गया तो मुंबई का पॉपुलेशन को आप कैलकुलेशन कर लीजिए। एक व्यक्ति के 400 ग्राम का जो कचरा है उनके साथ आप कल्पना कर सकते हैं कि 15 दिन में ये जगह रहने लायक नहीं रहेगी।
शायद ही हमने गौर किया होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारे लिए शहर को बिल्कुल साफ रखते हैं ताकि हम चैन से जी सके, ताकि हम स्वस्थ जी सके, शायद ही उनके प्रति हमने ग्रेटिट्यूड अदा किए होंगे, शायद ही किए। शायद हम ये सरलता से कह सकते हैं उनके बगैर तो मैं जिंदा रह सकता हूं या रह सकती हूं, किंतु वास्तविक रियलिटी कुछ और है। हमारे घर को अगर हम साफ नहीं करेंगे एक सप्ताह तक, तो शायद हमारे घर में भी हम रहना पसंद नहीं करेंगे। तो ये जो पार्ट है जो हमारे लिए करते हैं कार्य, जो हम शायद कोई व्यक्ति कह सकेगा ये तो हमसे छोटे हैं, निर्बल है, ये तो सफाई कर्मचारी है, पर उसकी वजह से मैं जिंदा हूं, उसकी वजह से मेरा अस्तित्व टिका हुआ है। ये सह अस्तित्व का एक उदाहरण। किडनीज, अगर हमारी सोशल किडनीज नहीं है तो सबसे पहले ये ह्यूमन बॉडी में अगर कोई पार्ट डिफेक्ट होगा वो है किडनीज। हम दूषित पानी पिएंगे तो हमारी किडनीज खराब हो जाएगी। हम अगर एक अच्छे वातावरण में नहीं रहे, एक डर्टी एटमॉस्फेयर में रहेंगे, तो स्वाभाविक है हमारी किडनीज के ऊपर पहले असर हो। मित्रों, कभी भी अगर हमारी सोशल किडनीज कहीं पर मुश्किल में है या कहीं पर कार्य करते हैं, जब हम देखते हैं एक ग्रेटिट्यूड स्वाभाविक रूप में कहिएगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारा सह अस्तित्व टिका हुआ है। ये हर एक जो हमारे इंटीग्रल ऑर्गन्स है, ये हर एक हमारी सोसाइटी का एक स्वरूप है। हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि जब जख्म लगता है, अगर मुझे यहाँ पर लगा, तो व्हाइट सेल्स, व्हाइट जो ब्लड सेल्स है वो काम करते हैं, राइट? वो आकर सुरक्षा निभाते हैं। वो जो इन्फेक्शन लगना है वो इन्फेक्शन को रोकते हैं। ये इन्फेक्शन रोकने का कार्य अगर शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं, उसी तरह हमारे सोशल व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, जिसे हम आर्मी कहते हैं, जिसे हम पुलिस कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं। ये और कुछ नहीं है, हमारे शरीर के अंदर की जो एक CD4 है, कैपेसिटी है, वो सोसाइटी के द्वारा हमारा सुरक्षा करने वाली बाह्य एक सिस्टम है। कभी भी उन्हें भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। पूरे ऑर्गन को आप उसी तरह से एक एक सोशल ऑर्गन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं मित्रों। ये रियलिटी है, हमने आज तक गौर नहीं किया है। सह अस्तित्व की बात करते हैं तो दूसरे के साथ मेरा जीवन, किंतु दूसरे की वजह से मेरा जीवन, ये प्राइमरी प्रिंसिपल है। दूसरे की वजह से मेरा अस्तित्व, ये पहली शर्त है। और इसलिए हम सरलता से, सहजता से अगर किसी को इग्नोर करते हैं, दूसरे को इग्नोर करते हैं, तब हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जब दूसरे को इग्नोर करते हैं तब प्राइमरीली हम इग्नोर होते हैं, खुद इग्नोर होते हैं। उसी तरह हर एक तरह के ऑर्गन के साथ हमारी जर्नी सोसाइटी के साथ एक हार्मोनाइज्ड रूप में जुड़ी हुई है। हमें उन्हें गौर करने की जरूरत है। मित्रों, हम लोग खुराक ग्रहण करते हैं, खुराक लेते हैं और हमारा शरीर के अंदर एक डाइजेशन सिस्टम आरंभ होता है, राइट? हम खुराक का पाचन क्रिया वगैरह आरंभ होता है। ये खुराक जो हमने ग्रहण किए, उसी तरह हमारी सोशल डाइजेशन सिस्टम भी सक्रिय रूप से कार्य करती है। हम आमतौर पर कहते हैं ना, हमारा शरीर किससे बना है? आप बता सकते हैं? नीचे बैठे हुए आपके पास कुछ शेयर करने के लिए है शायद। बता सकते हैं हमारा शरीर किससे बना है? यस, और 70% पानी से, राइट, हाइड्रोजन, और बोन्स और मसल्स। यस, गुड गुड। आमतौर पर हम कहते हैं कि पंच तत्व से बना हुआ है, राइट? 5 एलिमेंट्स। ये 5 एलिमेंट्स में हम लोग नजदीक से अगर किसी को देखते, वो है पृथ्वी, मिट्टी, कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, कहते हैं ना आमतौर पर। ये मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, ये हमारे बहुत सारे फिलोसोफर्स भी इस बात के ऊपर प्रकाश डालते हैं। कबीर हमने नाम सुने हैं। कबीर बहुत अच्छा कहते हैं कि हमारा शरीर ये मिट्टी से बना है और हम मिट्टी के ऊपर जीवन भर चलते रहते हैं, मिट्टी को रौंदते हैं। तो कबीरा कहते हैं कि मिट्टी कहे कुमार से, तू क्यों रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा
मैं रौंदूंगी तो है। जब हम इस ग्रह के ऊपर से हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम वापस उस मिट्टी में मिल जाएंगे। मध्य भारत में एक बाबा फरीद नाम के एक बहुत अच्छे एक चिंतक हो चुके हैं। ये बाबा फरीद कहते हैं, थैंक यू, फरीद कहते हैं कि देख फरीदा मिट्टी खुली, ये जो मिट्टी है और ये मिट्टी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर हम लोग फिरते रहते हैं, तो बाबा फरीद हमें मिट्टी के स्वरूप में देखते हैं कि हम जो भी करते हैं वो मिट्टी का एक स्वरूप है। तो वे कहते हैं कि देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी ऊपर मिट्टी डुल्ली, हम सब मिट्टी का एक डुल के स्वरूप में। देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी ऊपर मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। हम सब लोग हंसते हैं, रोते हैं, विभिन्न एक्टिविटी करते हैं, ये और कुछ नहीं, मिट्टी का एक स्वरूप है और आखिरी में हम मिट्टी में मिल जाने वाले। जब हम ये कहते हैं कि हम मिट्टी से बने हैं, तो ये मिट्टी का जो स्वरूप है उसे समझने की आवश्यकता है कि मिट्टी क्या है। आप में से कितने लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं? ऑलमोस्ट सभी लोग। कितने एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में? 180। गुड, वेरी गुड। किसने प्रत्युत्तर दिया? हाँ, बहुत अच्छा। 180 और ट्रेसेबल जो है वो 98 एलिमेंट्स, राइट। ये मिट्टी और कुछ नहीं है, 98 एलिमेंट्स का समूह है। और 98 एलिमेंट्स में से हमारा ये जो शरीर बना, उनके लिए 28 एलिमेंट्स लेकर ये शरीर बना। तो जब भी ये शरीर को टिकाने की बात आती है, ये शरीर के साथ जो 28 एलिमेंट्स है उसे बैलेंस करने की बात आती है, राइट। हर रोज हम लोग खुराक ग्रहण करते हैं, वो और कुछ नहीं, मिट्टी का स्वरूप है, वो डाइजेस्टेबल फॉर्म में मिट्टी है। तो जब मैं ये 28 एलिमेंट्स, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और फुल बॉडी चेकअप करवाएंगे, आपको 28 एलिमेंट्स की लिस्ट आएगी। फॉस्फोरस इतना है, हाइड्रोजन इतना है, पोटेशियम इतना है, बेरियम इतना है, और वो बैलेंस में है तो हम स्वस्थ हैं। ये और कुछ नहीं है, मिट्टी है। हीलियम मिट्टी है, फॉस्फोरस मिट्टी है, पोटेशियम मिट्टी है, बेरियम मिट्टी है, सल्फर मिट्टी है। ये मिट्टी का स्वरूप है, साइंटिफिकली रूप में हमें उन्हें नाम दिया है। जब ये मिट्टी को हम अपने शरीर के साथ बैलेंस करते हैं, वो बैलेंस करने के लिए हर रोज हम लोग खुराक ग्रहण करते हैं, वो भी मिट्टी का स्वरूप है, वो और कुछ नहीं है, वो डाइजेस्टेबल फॉर्म में मिट्टी है। ये 28 एलिमेंट्स को बैलेंस करने वाली मिट्टी। अगर ये 28 एलिमेंट्स के अलावा इस शरीर में कुछ जाएगा तो स्वाभाविक रूप में शरीर रिएक्ट करेगा, जिसे हम पॉइजन कहते हैं। ये 28 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए हमारे लिए जो खुराक उत्पन्न करते हैं वो है किसान भाई बहन, राइट। अगर किसान भाई बहन नहीं है तो हमारे पास खुराक आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हम खुराक के आधार पर टिके हुए हैं, चाहे कितना भी भाषण क्यों ना दे दिया जाए, इंटेलेक्चुअल वर्क क्यों ना किया जाए, किंतु अगर जब तक अन्न नहीं मिलता हमारा शरीर सस्टेन नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता। तो जब हम लोग हमारी सोशल डाइजेशन सिस्टम को अगर प्राइमरी नहीं देंगे तो वापस वही कोएग्जिस्टेंस का सवाल आएगा, जहां पर हमारे खुद के ऊपर एक अस्तित्व का खतरा मंडरा रहेगा। और इसीलिए सबसे प्राइमरी ये है कि ये सोशल डाइजेशन सिस्टम का जितना ख्याल रखते हैं, उससे पहले या उससे अधिक वो आउटसाइड की जो डाइजेशन सिस्टम है उसे हमें ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि उसकी बदौलत मेरी थाली में खुराक आता है। एक बहुत अच्छा प्रेडिक्शन किया है आल्फ्रेड फोर्ड ने, और ये प्रेडिक्शन में वे कहते हैं कि हमारे ये जो शरीर है, ये शरीर को हम लोग जो खुराक ग्रहण करते हैं, राइट, ये खुराक की वजह से ये शरीर टिका हुआ है। जिस दिन ये खुराक मिलना बंद हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा। किंतु आज जहां पर हम लोग एक डेवलपमेंट की परिभाषा में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेसिव रूप में आगे बढ़ते हैं, वहां पर हमारे पास जमीन का जो प्रमाण है वो बहुत कम होता जा रहा है। जो प्रोडक्टिव फर्टाइल लैंड है वो बहुत कम होती जा रही है। और इसीलिए
अगर सबसे पहले किसी के ऊपर खतरा आएगा तो वो ये है कि हमारी फूड सिस्टम कॉलेप्स हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। क्योंकि अगर अनाज उत्पन्न नहीं होगा, सब्जी फल उत्पन्न नहीं होंगे, तो स्वाभाविक रूप में हम लोग अपने अस्तित्व को टिका नहीं पाए। और वो प्रेडिक्शन में वे कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आई जहां पर जमीन का प्रमाण नहीं रहेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, वॉर होता है ना, युद्ध होता है, केवल 50 साल, इतनी बड़ी हिंसा मित्रों आज तक पृथ्वी पर नहीं हुई। 2 महायुद्ध हो चुके हैं, किंतु उन 2 महायुद्ध में भी इतनी हिंसा नहीं हुई। आप गौर करिए, आंकड़ों के साथ गौर करिए। हो सकता है कि ये पृथ्वी का एक मैकेनिज्म है कि अगर पृथ्वी को कोई एक तरह से शोषित करता है तो पृथ्वी उनका अस्तित्व खत्म कर देती। डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर एक तरह से वे शोषक बन गए थे। वो अपने खुराक में एक साथ कई चौरस किलोमीटर तो उनके पेड़ पौधे को अपने अंदर समाहित कर देते। अगर मैं ये कहूं, जो भी पृथ्वी को भक्षण करता है, शोषण करता है, पृथ्वी उनका अस्तित्व खत्म कर देती है, तो आज आपको क्या लगता है पृथ्वी पर जितनी भी स्पीसीज है उनमें से सबसे खतरनाक पृथ्वी का शोषण करने वाली जाति कौन सी है? इंसान, मनुष्य। और ये वास्तविक है। ये 50 साल में जो 69% जीव सृष्टि खत्म हो गई है, उनके जिम्मेदार इंसान। मित्रों, ये आंकड़ा है, ये एक बहुत ही रोचक रूप में प्रस्तुत होता है कि इस पृथ्वी पर अगर सबसे बड़ी हिंसा अगर कोई हो रही है तो ये जीव सृष्टि का खत्म होना। युद्ध सबसे बड़ी हिंसा नहीं है, या यूं कहे कि हम किसी को मारते हैं, किसी की हत्या करते हैं, इवन ये भी सबसे बड़ी हिंसा में कंसीडर नहीं है। अगर किसी की हत्या करना, ये भी आप गूगल पर जाकर देखेंगे कि जो बिगेस्ट वायलेंस है उनमें 26वें क्रम पर किसी की हत्या करना, ये 26वें क्रम पर। किसी की हत्या करना अगर ये 26वें क्रम पर है, हम तो नहीं करते किसी की हत्या, करते हैं क्या? आप किसी को मारते हैं, डांटते हैं क्या? नहीं, स्वाभाविक रूप में नहीं। पर मित्रों, 1 से 25 में हम सभी लोग सम्मिलित हैं। हम जिस तरह से जब भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे लेदर के वॉलेट चाहिए, और वो भी जो एक तरह से अजगर है या बाम्बू वाइपर है, उनके स्किन वाला मुझे वॉलेट चाहिए, ये हमारी जो ग्रीड है, वो ग्रीड को जब हम फुलफिल करते हैं तब 1-2 जीव को खत्म करते हैं। जब हम ये करते हैं कि एक गाड़ी की जरूरत नहीं है, कार की जरूरत नहीं है, बावजूद हम कार लेकर अकेले व्यक्ति निकलते हैं और 4 किलोमीटर कार चलाते हैं, तब जो कार्बन का एक तरह से फुटप्रिंट सर्जन होता है, वे कहीं ना कहीं 1-2 जीव के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। जब हम ये ख्वाहिश करते हैं कि बाहर का जो क्लाइमेट है वो 47-48 है, और जब हम अंदर के क्लाइमेट को अपने सुविधा या अपने प्लेजर के आधार पर देखते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं, तब कहीं ना कहीं 2-4 जीवों को हम खत्म करते हैं। सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस मित्रों केवल और केवल ह्यूमन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, हमारा और अन्य जीव सृष्टि के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। और इसीलिए हम ये सभी सिस्टम के साथ हमारा जो बॉडी है उनको टिकाना है, तो हमारे एक्सटीरियर ब्रेन्स, एक्सटीरियर लंग्स, एक्सटीरियर किडनीज, ये सभी को भी संभालना है। उसके साथ साथ हमारे एक्सटीरियर लंग्स जो है, पेड़ पौधों को भी संभालना है, छोटे छोटे जीव सृष्टि को भी संभालना है। अगर ये नहीं संभालेंगे और एक दौर ऐसा आएगा जब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसके जिम्मेदार और कोई नहीं, हम ही होंगे। रेड इंडियन में बहुत अच्छी कहावत है मित्रों। रेड इंडियन में कहावत कहते हैं कि जब इस पृथ्वी पर आखिरी पेड़ कट जाएगा, गौर करिए, जब इस पृथ्वी पर आखिरी पेड़ कट जाएगा
आखिरी नदी भी जहर से विषयुक्त हो जाएगी, आखिरी नदी के पानी में भी जहर मिल जाएगा, आखिरी मछली भी पकड़ी जाएगी और आखिरी अनाज का दाना भी खत्म हो जाएगा, तब हम इंसानों को ये पता चलेगा कि रुपए खाए नहीं जा सकते। और इसीलिए हमने जो एक संसाधन की व्यवस्था बनाई है, वो संसाधन की व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक दूसरे के साथ अस्तित्व को संभाले, उनको उतना महत्व दे। और इसीलिए आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर अगर कोई संदेश है तो वो यही होगा कि हमारे शरीर को टिकाना है तो सोसाइटी को टिकाना है, हमारे अस्तित्व को टिकाना है तो प्रकृति को टिकाना है। और अगर हम अपनी लालच की दौड़ में आगे बढ़ते चलेंगे तो शायद ही हम अपने आप को भी टिका पाएंगे। आज इस अवसर पर डॉक्टर मोहनलाल पाठक एंडोमेंट लेक्चर सीरीज में मुझे प्रस्तुत करने का मौका मिला, विषय को रखने का एक अवसर आयोजकों द्वारा प्रदान किया गया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे महानुभावों की स्मृति में ये लेक्चर हो रहा है, ये हमारे लिए, सोसाइटी के लिए एक प्रेरणा रूप है। ऐसे व्यक्ति का सानिध्य, उनके विचार सृष्टि को जिंदा रखना, ये हम सबका एक कर्तव्य बन जाता है। और ये मूल्य की जो श्रृंखला है, जो सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई है, हम तभी संभाल पाएंगे जब ऐसे महानुभावों के जीवन से हमने एक विरासत जो प्राप्त की है, हम उनको संभाल पाएंगे। फिर से आप सभी के प्रति मैं शुक्रिया अदा करता हूं और तहे दिल से इस अवसर पर जो भी संदेश हम ले सके वो यही होगा, एक दूसरे के अस्तित्व के साथ घुल मिल जाइए, एक दूसरे के अस्तित्व को टिकाने के लिए प्रेरक बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Elaborate on how we as humans coexist and what does existence mean. Also to enlighten the students of how values helped us grow as a society and as individuals. I'm sure this new perspective of how we view society as a human body was very enlightening to the students as well. Once again, I thank you for enriching our event with your presence. May I now invite Ms. Unnati Sawant of SYGCA from BMN College to give a vote of thanks. As we appreciate our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. A very good morning on behalf of UGC recognized Gandhian Studies Center of Dr. BMN College of Home Science. I, Ms. Unnati Sawant, would like to extend my heartfelt gratitude to everyone for gracing us with your presence here today at the 6th Shri Mohanlal Pathak Endowment Lecture Series. We are deeply honored to have had the privilege of hosting Dr. Ashwin Zala, an eminent scholar and associate professor, whose insights into Gandhian values for coexistence have enriched our understanding. Thank you, sir, for your very insightful lecture and sparing time from your extremely busy schedule. We extend our deepest gratitude to Dr. Bharat Pathak, Honorary Secretary of SMES and Pathak family for instituting this endowment lecture series. We express our heartfelt gratitude to our management members of Seva Mandal Education Society for their encouragement and support in all our endeavors. We thank Lions Club of Science for your motivating presence. We would also like to thank Principal Professor Mala Pandulang for being a constant source of inspiration and guidance. We appreciate the efforts of the organizing committee, non-teaching staff and volunteers for the invaluable assistance that they have provided. I am also indebted to our audience whose presence here today reflects a shared commitment to the principles of coexistence and legacy of Mahatma Gandhi. Thank you all once again for your presence and participation. Have a wonderful day.